رات کی گہری خاموشی میں صرف پانی کی ہلکی ہلکی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کرم دین نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اپنے بوڑھے ہاتھوں سے ڈول کو مضبوطی سے تھاما اور جیسے ہی تھوڑا آگے جھکا، اچانک اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس کا کمزور جسم لڑکھڑا گیا اور پھر ایک چیخ، ایک گونجتی ہوئی سسکی کے ساتھ وہ کنویں کی گہرائیوں میں جا گرا۔ اگلے ہی لمحے گاؤں کی ہوا میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ یہ کہانی کرم دین اور اس کے بچوں کی ہے۔ کرم دین کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ کرم دین کی ساری اولاد جوان ہو چکی تھی۔ کرم دین ایک سفید داڑھی والا درویش صفت بزرگ تھا، جس کی نظریں ہمیشہ جھکی رہتی تھیں۔ لوگ اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اس کے تینوں بیٹے بھی جوان اور محنتی تھے۔ ہر گھر کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کرم دین کے گھر بیاہی جائے، لیکن کرم دین کو تو بس ایک ہی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اس کا پورا دھیان اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کی طرف تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹوں کی شادی سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کر دے۔ اس کی بیوی کا تو عرصہ ہوا انتقال ہو چکا تھا۔ آخر کار کرم دین کی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ آ ہی گیا، مگر جب رشتہ آیا تو بجائے خوش ہونے کے کرم دین پریشان ہو گیا، کیونکہ یہ رشتہ ایک دور دراز کے گاؤں سے آیا تھا۔ کرم دین کے تینوں بیٹوں نے مشورہ دیا کہ اس رشتے سے انکار کرنا مناسب نہیں ہوگا، لہذا کرم دین نے دل پر پتھر رکھ کر اپنی پیاری بیٹی کو دوڑ کے گاؤں میں بیاہ دیا۔ رخصتی کے وقت بیٹی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر جاتے ہوئے اس نے باپ کا ہاتھ تھام کر کہا، ابا جان، اب میں اتنی جلدی واپس نہیں آ سکوں گی۔ اب بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں، آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا۔ بھائی تو اپنی زندگی میں مگن ہیں، مگر وعدہ کریں کہ آپ خود کو نظر انداز نہیں کریں گے۔ بیٹی کی بات پر کرم دین مسکرا دیا، حالانکہ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بیٹی کی شادی کے بعد کرم دین نے اپنے تینوں بیٹوں کی بھی شادیاں کر دیں۔ اس کی بہویں نہایت خوبصورت اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ کرم دین بہت خوش تھا کہ وہ اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ اب اس نے اپنی بقیہ زندگی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن حالات تیزی سے بدلنے لگے۔ چند دن بعد ایک سخت سرد رات تھی۔ کرم دین اپنے کمرے میں کمبل اوڑھے لیٹا تھا کہ اچانک اس کی بہو اندر داخل ہوئی۔ کرم دین حیران رہ گیا جب کسی نے اس کے اوپر سے کمبل کھینچ لیا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ ایسی شدید سردی میں بغیر کمبل کے سونا ناممکن تھا۔ سامنے بہو کھڑی تھی، جس نے ایک پرانی اور پھٹی ہوئی چادر کرم دین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ یہ لے کر سو جائیں، ہم 2 لوگ ہیں اور ہمارے پاس کمبل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بہو فوراً کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ ٹھٹھرتا ہوا کرم دین حیران و پریشان رہ گیا۔ اس نے وہ پتلی سی چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنی باریک تھی کہ اس میں نیند آنا محال تھا۔ کرم دین سوچ میں پڑ گیا کہ بہو اپنے مائکے سے بہت سا سامان لائی تھی، اس میں بھی تو کمبل تھا، پھر اس نے میرا کمبل کیوں لے لیا؟ یہ سوال بار بار اس کے ذہن میں آ رہا تھا، لیکن جیسے تیسے اس نے رات گزار لی۔ اگلی صبح جب وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا تو باہر شدید سردی تھی۔ پہلے اس کی بیٹی روز اس کے لیے پانی گرم کر دیا کرتی تھی، مگر آج چولہے میں رکھی لکڑیاں سرد پڑی تھیں۔ کرم دین نے بہو کو آواز دی کہ وہ پانی گرم کر دے۔ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ وہ باہر نکلی اور کرم دین کو دیکھتے ہی غصے سے برس پڑی۔ بڈھے، نہ خود سوتا ہے، نہ کسی اور کو سونے دیتا ہے۔ یہاں سے چلے جاؤ، میری نیند خراب مت کرو۔ یہ کہہ کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی، مگر کرم دین سکتے میں آ گیا۔ لیکن اسے تو نماز ادا کرنی تھی،
लहजा उसने ठंडे यख पानी से वजू किया और जाए नमाज बिछा कर बैठ गया। जब सुबह बहुएं जागीं तो करमदीन ने उनकी आवाज सुनी, बुढ़े, अब कमरे से निकलकर बाहर आ और बाजार से सामान ला कर दे। करमदीन के दिल को ये सुनकर बहुत तकलीफ हुई, मगर बहुएं अब इसी अंदाज में बात करने लगी थीं। उन्होंने करमदीन को कमरे से निकाला और एक लंबी फहरिस्त थमा दी। बेचारा करमदीन सारा दिन बाजार में मारता फिरता रहा, मुख्तलिफ चीजें खरीदता रहा। शाम को जब वो थका हारा वापस आया तो बहू ने इसके हाथ में पानी से भरी बाल्टी और झाड़ू थमा दी। पूरा सहन धो दो, घर में मेहमान आ रहे हैं। बहू के हुक्म पर करमदीन खामोशी से सहन धोने लगा, हालांकि इस वक्त तो कुरान पढ़ने का वक्त था। करमदीन को सख्त भूख लग रही थी, लेकिन बहुएं खाना पक्का कर अपने अपने कमरों में जा चुकी थीं। करमदीन का सब्र आजमाया जा रहा था। करमदीन सख्त भूखा था, लेकिन बहुएं खाने के बाद अपने कमरों में जा चुकी थीं। शादी के बाद इसके बेटे तो नजर ही नहीं आते थे, सारा वक्त बस अपनी बीवियों के अर्द गिर्द घूमते रहते। बूढ़ा करमदीन थका हारा अपने कमरे से निकला और उधर उधर कुछ खाने को तलाश करने लगा, लेकिन बावर्ची खाने में भी कुछ नहीं था। बर्तन खाली पड़े थे। इत्तेफाक से एक बहू बाहर आई। करमदीन ने जल्दी से इससे पूछा, बेटा, क्या मेरे लिए कुछ खाने को है? बहू ने गुस्से से पलट कर जवाब दिया, दिन रात खाने के अलावा कोई और बात भी कर लिया करो। खाने को कुछ नहीं है, जो था वो खत्म हो गया, अब सुबह ही खा लेना। करमदीन सकते में रह गया। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, लेकिन खामोशी से पलटकर अपने कमरे में चला गया और जाए नमाज बिछाकर ज़ारो कतार रोने लगा। उसे अपनी बीवी की बहुत याद आ रही थी, मगर बहुएं दिन बदन उसके साथ मजीद बुरा सलूक करने लगें। करमदीन चाहता था कि अपने बेटों से बात करे, लेकिन तीनों बेटे अब इससे लाताल्लुक हो चुके थे। करमदीन के घर के साथ एक बेवा औरत रहती थी, जो खामोशी से ये सब कुछ देख रही थी। जब करमदीन अपने सहन में जाए नमाज बिछाकर रोता तो वो अपने घर में बैठकर सोचती कि इतने नेक और अल्लाह वाले बुजुर्ग के साथ बहुएं ऐसा जालिमाना सलूक क्यों कर रही है। एक रात जब हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, करमदीन की बहू उसके कमरे में दाखिल हुई। उस वक्त करमदीन जाए नमाज बिछाए इशा की नमाज के लिए खड़ा हो रहा था। वो दिन भर के कामों से थक चुका था, लेकिन नमाज तो पढ़नी थी। अभी वो कयाम में खड़ा हुआ ही था कि बहू गुस्से से बोली, बुढ़े, दिन रात नमाज पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं तुझे? ये कहते ही बहू ने आगे बढ़कर करमदीन के सामने से जाए नमाज खींचकर दूर फेंक दिया। ये कहते ही बहू ने आगे बढ़कर करमदीन के सामने से जाए नमाज खींचकर दूर फेंक दिया। करमदीन का दिल दाहिल कर रह गया। चल जा, कुएं से पानी भर कर ला। घर में पानी खत्म हो गया है, बहू ने हुक्म दिया। करमदीन बुरी तरह थक चुका था। बूढ़ी हड्डियां अब इतनी ताकत नहीं रखती थीं कि दिन भर की मशक्कत के बाद मजीद काम कर सके, लेकिन बहू को इनकार करना इसने कभी सीखा ही नहीं था। वो खामोशी से डोल उठाकर कुएं की जानिब बढ़ गया। कुआं काफी फासले पर था, रात अंधेरी थी और करमदीन को साफ नजर भी नहीं आ रहा था, लेकिन ठोकरें खाता हुआ वो जैसे तैसे कुएं तक पहुंच ही गया। उसने डोल कुएं में डाला और पानी निकालने लगा। शायद पानी बहुत गहरा था, कई बार कोशिश करने के बावजूद पानी ना निकला। अगर मैं पानी के बगैर घर गया तो बहुएं फिर शोर मचाएंगी, बेहतर है कि कुछ और कोशिश कर लूं, करमदीन ने दिल में सोचा। उसने कुएं में थोड़ा और झुककर डोल डालने की कोशिश की, मगर उसका कमजोर जिस्म संभल ना सका, वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और अचानक वो कुएं में जा गिरा।
करमदीन का कमजोर जिस्म कुएं में जा गिरा। जैसे ही वो नीचे गिरता गया, उसने हाथ पांव मारने की कोशिश की और कुएं की दीवार पर उभरी हुई एक ईंट को मजबूती से पकड़ लिया। अब वो कुएं की तह में नहीं गिरा था, लेकिन नीचे काफी गहराई में लटका हुआ था। इसका बूढ़ा जिस्म कांप रहा था, हर हड्डी दर्द कर रही थी। उसने चीख चीख कर मदद के लिए पुकारा, लेकिन रात के अंधेरे और शदीद सर्दी की वजह से हर कोई अपने घरों में सो रहा था। करमदीन को अपनी मौत यकीनी नजर आने लगी। चिल्लाते चिल्लाते इसका गला बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे, मगर कोई ना आया। काफी देर बाद इसे कुएं की मंडेर पर एक हल्की सी रोशनी नजर आई। ये वही बेवा औरत थी जो करमदीन के घर के करीब रहती थी। पहले तो वो हैरान रह गई कि करमदीन कुएं में क्यों लटका हुआ है, लेकिन फौरन उसने अपनी रस्सी कुएं में लटका दी। करमदीन ने जल्दी से रस्सी पकड़ ली और बड़ी मुश्किल से वो बेवा औरत इसे बाहर खींचने लगी। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसने करमदीन को बाहर निकाल लिया। करमदीन का पूरा जिस्म सर्दी से कांप रहा था। वो कपकपाता हुआ अपने घर पहुंचा तो बहुएं फौरन चीखने लगे। पानी लेने भेजा था, वो भी लेकर नहीं आया। करमदीन ने बेबसी से बहू की तरफ देखा, मगर कुछ कहे बगैर खामोशी से एक तरफ बैठ गया। अगली सुबह जब उसके बेटे घर वापस आए तो बहू ने उनसे शिकायत की। अब्बा ने रात को पानी लाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से हमें खुद पानी भरना पड़ा। बेटों ने गुस्से में आकर करमदीन को डांट दिया। अब्बा, क्या आपको शर्म नहीं आती? हमारी बीवियां सारा दिन आपकी खिदमत करती हैं और आप उनके कहने पर एक काम भी नहीं करते। ये सुनकर करमदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगा, मगर बहुएं अब एक नया जुल्म करने लगे। जब भी करमदीन नमाज पढ़ने बैठता, वो जानबूझकर जोर जोर से गाने लगाती ताकि उसकी इबादत में खलल डाल सके। फिर एक दिन करमदीन ने अपनी बेटी के नाम एक खत लिखा। उसने इस खत में अपने साथ होने वाले तमाम मजालिम का जिक्र किया और दरख्वास्त की कि वो आकर अपने बूढ़े बाप को ले जाए, क्योंकि इसके बेटे तो अब सिर्फ अपनी बीवियों के गुलाम बनकर रह गए थे। खत भेजने के बाद करमदीन बेताबी से बेटी के जवाब का इंतजार करने लगा। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, यहां तक कि कई महीने गुजर गए, मगर बेटी का कोई जवाब ना आया। अब तो करमदीन बिल्कुल मायूस हो चुका था। इसकी बहुएं दिन बदन मजीद जुल्म करने लगीं। एक दिन वो करमदीन के कपड़ों को बच्चों के गंदे और नापाक कपड़ों के साथ मिलाकर धोने लगे। जब करमदीन ने एहतिजाज किया तो बहुएं गुस्से से बोले, अगर तुम्हें इतना ही मसला है तो अपने कपड़े खुद धो लिया करो। करमदीन ने अपने कपड़े खुद धोना शुरू कर दिए, मगर जब वो धुले हुए कपड़े तार पर डालता तो बहुएं हंसते हुए इस पर मिट्टी फेंक देती। लेकिन वो ये नहीं जानती थीं कि अल्लाह हर चीज देख रहा है। आखिर एक दिन करमदीन की बेटी अपने शौहर के साथ आ गई। इसकी गोद में एक खूबसूरत बच्चा था। उसने मोहब्बत से अपने बाप का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा जान, मैं आपको लेने आई हूं। करमदीन ने एक लम्हे के लिए अपने बेटों की तरफ देखा, जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका दिल अब किसी फरेब में आने वाला न था। उसने बेटी के साथ जाने की हामी भर ली। बेटी उसे अपने साथ ले गई और वहां जाकर करमदीन ने सिक्का सांस लिया। वो फिर से अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। लेकिन अल्लाह का अजाब उन जालिम बहुओं के लिए मुंतज़िर था। कुछ ही दिनों में गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। करमदीन की बहुएं गलियों में चलती फिरती थीं, तो लोग उन्हें कातिया कातिया कहकर आवाजें देने लगे। अल्लाह के अजाब ने उनकी शक्लें मस्ख कर दी थीं।
ان کے چہرے اتنے خوفناک ہو چکے تھے کہ لوگ ان پر پتھر مارتے اور وہ گلیوں میں بھاگتی پھرتی تھیں۔ وہ ظالم جو کرم دین کو حقیر سمجھتی تھیں آج خود ذلیل و خوار ہو چکی تھیں۔ اللہ نے اپنا انصاف کر دکھایا۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، یہ ایک عبرتناک واقعہ تھا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔